Hello students, today I am going to revise the first chapter of chemistry, that is some basic concept of chemistry. Some basic concepts of chemistry. Now in this chapter today I am going to study about first importance of chemistry. Okay, importance of chemistry. Now let us start. What do you mean by chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of structure, properties, interaction and transformation of matter. Okay. What do you mean by matter? Matter is anything which occupies space and has some mass. This is called as matter. Now chemistry have a very important role in science and some other branches of science. It is very important role in the daily life. Okay. Now what is the importance and the scope of chemistry? Okay. Chemistry has helped us to meet with all our requirements that are necessary for the advancement of life, like the food additives, healthcare products, plastics, dyes and polymers also. Okay. Now इसकी जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो क्या है बेटा? केमिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स. पॉलीमर्स को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? केमिस्ट्री का है. Second is manufacture of fertilizers. Manufacture of fertilizers, drugs, soap, alkali base, salts, dyes, metals, alloy and some other organic and inorganic chemicals. इनमें सब में अच्छा जो रोल है दैट इज ऑफ केमिस्ट्री. ओके. नाउ पॉइंट नंबर 3. केमिस्ट्री ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स. लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सी होती है बेटा? लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक द सिस्प्लैटिन, जैसे हम बोलते हैं सिस्प्लैटिन, टेक्सटॉल. ओके. ये आपका जो होता है इफेक्टिव होता है कैंसर थेरेपी में, कैंसर में यूज़ होता है. ओके. तो ये आपका जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑप्टिकल फाइबर्स, कंडक्टिंग फाइबर्स, ठीक है, पॉलीमर्स, इनमें इसका यूज होता है. नाउ नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑटोमोटिव एंड एरियोस्पेस. एरियोस्पेस में भी इसका यूज होता है. ठीक है. तो ये सारा किसका रोल है बेटा? केमिस्ट्री का ही रोल है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ मैटर. नेचर ऑफ मैटर. देखो बेटा, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास, दिस इज कॉल्ड एज मैटर. लाइक पेन. दिस इज अ पेन, मीन्स it has its mass and it occupy the space. Okay. So this is a matter. Like book, pencil, chair, table, all these are matter. Okay. In our chemistry, this term is used only for materials. Okay. अब इसको हम क्या बोलने लग गए? मैटर बोलने लग गए. Okay. All the materials are matter, but all the matters are not material. Okay. Now how will you classify the matter?
Matter is classified into the two type, physical classification and second is chemical classification. Okay, chemical classification. Physical classification is based on the physical properties and chemical classification is based on the chemical composition. Okay, on the basis of physical classification matter is classified into the three states. इसको हमने three states में divide किया है, solid, liquid और gas. Okay, but on the basis of chemical classification matter is classified into the two types. First is pure substance and second is mixture. Second क्या है? Mixture. Okay, ये आ जाएगा. Now, in case of solid, the particles are held very close to each other, means there is no much freedom of the movement. Okay, but in liquid state particles are close to each other in this manner, means they can move around each other. वो आपस में एक दूसरे से move कर सकते हैं. In gases particles are as far apart as possible. ठीक है, मीन्स द मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स दैट इज वेरी फास्ट एंड वेरी इजी. ओके, आप ये बता सकते हो. नाउ these three states, solid, liquid and gas, these are interconvertible like this. Solid change into liquid after melting. Okay, and liquid change into gas after evaporation. Okay, gas change to liquid on condensation and liquid change to solid on freezing. Okay, solid change to gas form by the process of sublimation and gas again change to solid by the process of sublimation. ओके, ये आ जाएगा. नाउ इसके अलावा बेटा दो स्टेट्स और भी होती हैं हमारी. एक होती है प्लाज्मा स्टेट, एक होती है बोस-एनस्टीन कंडेंसेशन स्टेट. ओके, ये जो अपनी प्लाज्मा स्टेट है और बोस-एनस्टीन कंडेंसेशन जो स्टेट्स होती है, ये दोनों ही स्टेट आपकी एग्जिस्ट करती हैं एक एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. ठीक है, तो इस वजह से इनको इंक्लूड नहीं करते, ओनली सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही इंक्लूड करते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर मीन्स दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जिसकी कॉम्पोजिशन क्या हो, फिक्स्ड हो, means fixed composition. And mixture is from the variable composition, means this is not a fixed composition, this is variable composition. Okay, but pure substance, it is of two type. First is element, second is compound and third. ठीक है, और मिक्सचर इट इज अगेन ऑफ टू टाइप बेटा. दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, तो देखो बेटा, लेट अस स्टार्ट. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, एलिमेंट आपके जो है बेटा मेटल्स आते हैं इसमें, नॉन मेटल्स and metalloids. Okay,
अब प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसकी कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स्ड होती है और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये आपके क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ओके अब प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एलिमेंट भी हो सकता है, आपका कंपाउंड भी हो सकता है, बट प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, so this homogeneous mixture is also called as solution. Okay, it is of three types: metals, non-metals and metalloids. ओके अब बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल। ओके नाउ metals. Metals are those element which reflect the light and it shows the luster. Luster means shining show करता है ये। Metals are the good conductor of heat and electricity. They are malleable, ductile and at the room temperature metal exists in the form of solid. Metals के example क्या है बेटा, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, all these are metals. Now what is non-metals? Non-metals are those elements which don't reflect the light, means don't have luster property. They are brittle, means poor conductor of heat and electricity. Okay, except graphite. ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे क्या है, poor conductor of heat and electricity show करते। Now the point number third, that is metalloids. Metalloids are those elements which shows both the properties of metals as well as non-metals. एग्जाम्पल क्या है, जैसे बिस्मथ है बेटा, एंटीमनी है, ऑल दीज आर मेटलॉइड्स। ओके नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लिए हुए हैं, ठीक है, और इनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, मीन्स दीज आर ज्वाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ओके कंपाउंड्स जो है वो आपके दो टाइप से हैं बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स आपके दो टाइप से हैं, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके organic compounds means those compounds which contain carbon and a very few other elements like hydrogen, nitrogen and sulfur. Inorganic compounds कौन से होते हैं, means they are made up of any two or more element out of more than 114 elements. ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या हो बेटा, कार्बन के अलावा और जितने भी आपके पास हैं अदर एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी को शो करें, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है बेटा, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ, मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं किसी भी रेशो में, मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल रेशो नॉट अ फिक्स्ड रेशो। ओके लाइक एयर, वाटर, एयर, मिल्क, टी, इनकी रेशो फिक्स नहीं होती, बट वाटर की रेशो फिक्स होती है। वाटर क्या है, कंपाउंड है। मिक्सचर में हम क्या लेते हैं, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली कंबाइंड इन एनी रेशो, दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। मिक्सचर आपका दो टाइप से बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, मीन्स अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ओके जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो दैट इज होमोजीनियस, लाइक द सॉल्ट सॉल्यूशन, एयर, ये क्या है, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मीन्स जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको ऑब्जर्व दिखाई दे। इसमें हम एग्जांपल